Good morning, everybody, and welcome to our masterclass on what are we learning from Indian Halloween with Professor Samish Dalal. So, to give you all a small intro of Professor Samish Dalal, Professor Samish Dalal specializes in the field of negotiation, marketing, and entrepreneurship. He has taught to more than 5,000 students of family business and has a touch base with more than 800 Indian family businesses. He has done his MBA from University of Queensland and also studied at Harvard Business School. He is also an TEDx speaker and he has trained to more than 5,000 students of undergraduate and postgraduate for career planning. Good morning, sir. Welcome and over to you. Thank you, Deepa ma'am. Thank you very much. You know what, Deepa madam? The reason I started smiling when you said the word Halloween, and all the wonderful participants, guys, this was a very interesting topic. It took some time for us to come to the topic that why should we choose this topic, guys? But interestingly, it has a lot of meaning behind it, and the intention for today's topic also I will communicate. Good morning, everyone, and welcome to this session. Okay. We are just on the day before दिवाली, तो हो सकता है कि आप लोग दिवाली के प्रेपरेशन में भी हो, थोड़े व्यस्त हो, लेकिन मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, थैंकफुल हूं, अप्रिशिएटिव हूं of all the people who dedicated to spend time and be here. It's wonderful, guys. Okay, ये हमारा संडे का जो सिस्टम है ऑन रहना जरूरी है, एक्सेप्ट 7 नवंबर को हम लोग नहीं मिलेंगे, उसके बाद के संडे को डेफिनेटली मिलेंगे. 7 नवंबर नहीं मिल पाएंगे, पर उसके बाद के संडे को डेफिनेटली मिलेंगे. एंड ऑब्वियसली टिल देन इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल दिवाली सेलिब्रेशन. सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड विश यू अ न्यू ईयर टू ऑल द पीपल. द आइडिया, गाइस, आज के दिन का बहुत इंटरेस्टिंग है. 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, हैलोवीन का बहुत रेफरेंस है आज के दिन पे. एंड आज के टॉपिक को हमको कंसेप्चुअलाइज करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज द यंगर जनरेशन रिलेट विद हैलोवीन एंड ऑल दैट. सो वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च करके बहुत इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ी है. आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये पूरी चीज का फैमिली बिजनेस के क्या क्या लिंक होने वाला है. शांति यार, कुछ ना कुछ तो लिंक होएगा, तब भी तो ये सेटअप किया है. सो आइडिया ये है, गाइस, कि लिंक है, पर्पस है एंड ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब सब कुछ है. तो फिर इसके बारे में कैसे रिसर्च किया? तो गाइस, हैलोवीन का जो रिसर्च करते हैं, आप भी कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है. ऑब्वियसली विद गूगल अराउंड हमको कोई भी रिसर्च इतना मुश्किल नहीं लग रहा है. हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, पर मैं सबको बोलूं उसके पहले आई वुड लाइक टू हैव अ रिस्पांस फ्रॉम एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी. चैट बॉक्स अपना ओपन रहता है, मैं नॉर्मल इस तरह से स्टार्ट करता हूं. सो एनीवन हु नोज what is Halloween and why it is celebrated, can just anybody type out in the chat box? I would like to see that. What is Halloween and why it is being celebrated? Whoever can want to type it out, just type it out, guys. Just be there. मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका राइट आंसर या रॉन्ग आंसर का कोई मैटर नहीं करता है. इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड. आई हर्ड got one response. In fact, there's very nice thing. There is a person in this audience, wonderful audience, and his name is Pandurang Nayak, and you already met him 3 days back on Zoom. Okay, and he said that, sir, we are the ones who respond very first in your Zoom session, and I can see today here he's responding like as usual, the first one. That's great, Pandurang Nayak. That's wonderful. Anybody else who would like to respond on what has been mentioned? Like, what is Halloween? Anybody? And that's fine, guys. इनकेस आंसर नहीं मालूम है तो कोई अपराध नहीं है, और आंसर मालूम है, यदि ऐसे ही आंसर लिखना है तो भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइस. एक इंटरेस्टिंग चीज है, हैलोवीन आज के दिन का चीज नहीं है, और शुरुआत आज नहीं हुई थी. ये शुरुआत कई सालों पहले हो चुकी थी. अल हलोवाइड करके एक सेलिब्रेशन होता था, बट सेलिब्रेशन खुशी या गम की बात नहीं है, भूत या ऐसी कोई चीज पहनने की बात नहीं है, डरावना या ऐसा कोई ज़ॉम्बी वाली चीज नहीं है. तो ये क्या है, क्यों है, इसका क्या तात्पर्य है? Does that have a meaning for us in the Indian family business context? मेरा पॉइंट तो ये है. I mean, obviously you guys might think about, but मैं जहीं पे हूं, जैसे भी हूं, तो फैमिली बिजनेस की बात करूंगा, उसको बात करता ही नहीं हूं. आप लोग सोचेंगे आपको कुछ आता भी क्या है, तो बराबर है नहीं यार. मतलब 24 घंटे चारे बाजू जहीं पे भी जाता हूं तो फैमिली बिजनेस की बात करता हूं. You'll be surprised, guys. आज मैं जहां पे हूं वहां पे भी अपने 2 स्टूडेंट को मिलके आया. I am right now in Amritsar. You can say it's like, live from Mumbai, live from Amritsar, something like that. So this is from Amritsar, and मेरे को Halloween का मैं जब स्टोरी कंसेप्चुअलाइज कर रहा था, I think I got a reference of that yesterday as well here when I was here. But anyways,
पॉइंट ये है कि हैलोवीन का मीनिंग क्या होता है. सो एज आई सेड कि ये आज की चीज नहीं है, हेलोवाइट करके बहुत पहले से है. एंड अभी लोग वो क्या कहते हैं, गूगल पे देख के मेरे को आंसर भेजे, लेट लेट मत करो गाइस, फटाफट फटाफट भेजो. ओके, करेक्ट. पॉइंट ये है कि हैलोवीन का मैंने बोला जैसे कि अलोवाइडाइट से मीनिंग है, आज का नहीं बहुत पहले से है. तो उसका कुछ ये डरावनी एक्टिविटी या ज़ॉम्बी से कुछ रिलेशन नहीं है. तो फिर रिलेशन किस चीज का है? रिलेशन किस चीज का है? अरे क्यों है? एंड क्या हम उसको सही मायने में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. एंड वो इंटरेस्टिंग चीज को समझना जरूरी भी है. एंड ये इसलिए समझनी जरूरी है कि ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली बिजनेस शुड कलेक्टिवली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. कलेक्टिवली, ऐसा नहीं है कि एक को समझना चाहिए दूसरे को नहीं समझना चाहिए. The earlier generation also should listen, the later generation should also listen. They should listen together actually. Male, female members of the family should listen together. क्यों? क्योंकि इसका एक मीनिंग है यार, बहुत ही डेप्थ है. एंड मेरे हिसाब से शायद मैं जिस एंगल से डेप्थ देख पाया हूं, आप भी देख पाए होंगे, बट मे बी उसको रिलेट नहीं कर पाया. तो यदि रिलेट भी कर पाए तो शायद आपका और मेरा विचार भी मैच हो गया. बी हैप्पी अबाउट इट. मेरा पॉइंट नंबर 1 इसमें कि ये होता क्या है. तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि इस दिन पे जो मार्टियर हैं, जो सेंट हैं, जो हमारे आजू बाजू के लोग थे, वो जो डिपार्ट मतलब डेथ हो गया है, उनको कोई तरीके से याद करते हैं. मीनिंग इतना ही है. फिर उसके आगे बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे मीनिंग निकले हैं. लॉट ऑफ थिंग्स अभी विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो मृतक हो चुके हैं, जो डेथ हो चुके, जो डिपार्टेड लोग हैं, मार्टियर, सेंट एंड पीपल अराउंड, उनको याद करते हैं. रेडी? जब मैं स्माइल करता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर लोचा होने वाला है. करेक्ट है, लोचा होने वाला है. डज इंडिया हैव a separate of its own Halloween? Anybody can think about a answer. मैं उसका नाम दूंगा right now. Does anybody think about a answer? Okay, Amit Bhai, bang on. Oh my goodness. Superb. Amit Bhai, you're genius, fantastic, mind blowing, fantastic. पुष्यमास जिसको बोलते हैं कि हम लोग गुजराती में उसको क्या कहते हैं, श्राद्ध बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, I think it is called पुष्टि something also. पितृपक्ष भी बोला जाता है. Different words been used for this wonderful thing called Indian Halloween. Yes, my dear friends. And उसमें से ही फैमिली मैनेज बिजनेस के अनगिनत लर्निंग आपको निकल सकते हैं, अनगिनत लर्निंग निकल सकते हैं. Let me begin with a very simple thing. My first and most important lesson. एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. कल शाम को हम लोग ये अटारी बॉर्डर गए थे, जो फ्लैग का अनफोल्डिंग होता है उस प्रोसेस को देखने के लिए. अपने तरफ के भी जवान जाते हैं, वहां के भी आते हैं. दे हैव अ प्रोसेस, सेरेमनी, एवरीथिंग. एंड उस तरफ एक मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो है, यहाँ पे गांधी जी का फोटो है. एंड देन वी वर लीविंग. एंड उतने में मेरी जो नीस है, शी इज अबाउट 8 years, और उसने बोला कि मामू ये दोनों अलग कैसे हो गए, मतलब लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके. And then one of our friends also said कि हाँ, I think that could be thought कि it would be a mistake. Reflectively देखा जाए तो mistake था. And उन्होंने बोला, हम सब भी उसमें हाँ ना ऐसा करके नॉर्मल डिस्कशन करते रहते थे. पता है, हम लोग ने बात क्या की, हमने रिफ्लेक्ट किया. इसका मतलब क्या होता है? आज दीपल मैडम का मेरे को 2 दिन पहले फोन आता है. वो फोन आके बोलती कि सर आज के दिन में मेरे को थोड़ा गड़बड़ होने वाला है. मतलब क्यों? क्योंकि आज मैं शायद घर पे नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा है. गोइंग टू बी एट एन एक्स प्लेस. तो जब वो एक्स प्लेस पे जाती है, वहां पे उसका इंटरनेट खराब होता है. इंटरनेट खराब होने के कारण शायद वो बरोबर इसके ऊपर अपीयर नहीं हो पाती है. तो जो 2-3 महीने के बाद इस प्रेजेंटेशन को देखेगा, बोलेगा है दीपल मैडम बरोबर अपीयर नहीं हो रही थी इस पे, ये क्लियर नहीं था, ये वो क्लियर नहीं था. हमने कमेंट कर दिया और फिर उसके ऊपर हमने रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया.
वही डिसीजन जब इंडिया पार्टीशन हुआ, रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया। घर में झगड़ा हो गया, रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया। दो जन के बीच में तनाव हो गया, रिफ्लेक्शन होगा। कस्टमर को एडवांस के लिए हमने मना कर दिया, उसको बोला कि 20 का डिस्काउंट ले ले, बच्चे ने बोला पापा मेरा गलत है, रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया। हर चीज में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। वेरी की वर्ड, रिमेंबर दिस फॉर एवर, माय फर्स्ट लर्निंग ऑफ द डे, रिफ्लेक्शन वर्सेस रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन वर्सेस रियलिटी, रिफ्लेक्शन वर्सेस रियल सिनेरियो। एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है बीच रास्ते पे, ऑब्वियसली बीच रास्ते पे ही होएगा, हाईवे पे नहीं है, ये स्पेसिफाई करने के लिए। रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ, टकराव हो गया, आप उतर के थोड़ा गुस्सा हो गए, और फिर गलती आपकी नहीं थी, फिर भी आपने पीछे जो गाड़ी देखी उसको माफ कर दिया, आपने कुछ उसके साथ लंबा झगड़ा नहीं किया, छोटा सा थोड़ी 2 मिनट का आर्ग्यू हुआ, गाड़ी में बैठ के निकल गए। अब घर पहुंचते हैं, घर के आपके फादर हैं, कोई और भी हैं, या मदर, कोई भी घर का कोई व्यक्ति है, बोलता है कि अरे तू गया, तेरा एक्सीडेंट होता, उसको डांटना था, ले लेना था, पुलिस को बुलाना था, ये करना था। नहीं, रहने दो यार। मैंने देखा कि गाड़ी में एक बुजुर्ग फैमिली बैठा था, ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी गलती हो गई, छोड़ दिया, ये किया वो क्या, दे पीपल स्टार्टेड अटैकिंग हिम। व्हाट हैपेंड गाइस? उस लड़के की जो कंडीशन थी उसके ऊपर आप रिफ्लेक्टिव एक्शन बता रहे हो, लेकिन वो लड़का जब उस परिस्थिति में था, जब उस एनवायरमेंट में था, जब उस सिनेरियो पे था, जब वहां पे था, तो उसके दिमाग में क्या हुआ है, क्या हमने सोचा है, क्या हमने उसको समझने की कोशिश की है? नहीं की है। At that point of time, whatever he thought, whatever he decided, and whatever he took appropriate as a decision, he took that, and that is correct. That is correct. स्टूडेंट मेरे पास आते बोलते हैं सर आपको पता है मेरे डैड ने वो पार्टी के साथ ऐसा रिलेशन रखा है, यार समझ में ही नहीं आता है सर। आज माल लेता है, 6 महीने के बाद पेमेंट करता है, फिर भी मेरे डैड उसको माल देते ही है। उनको बोलता हूं डैड हम लोग को क्लास में मालूम पड़ता है कि जितना पेमेंट लेट उतना अपना इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, सर डैड को समझाओ। मैं उसको बोलता हूं ना बेटा, मेरे को समझाने का जरूरत नहीं है, तू उनके साथ टाइम स्पेंड कर, उनको पूछ समझ कैसा एनवायरमेंट था, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कौन सी परिस्थिति थी, द व्हाइज इन द हाउस, व्हाई सच अ डिसीजन वाज टेकन, प्लीज स्टडी दैट। Rather than reflecting, it is very important to study the realistic scenario. कोई बंदा क्यों ऐसे करता है, कैसे ऐसे करता है, कौन से कारण से ऐसा करता है, यह समझना बेहद जरूरी है। हम लोग बहुत बार जो चीज हो जाती है उसके 5 साल 10 साल के बाद उसके ऊपर कमेंट करते हैं, थिंकिंग इट इज गुड टू रिफ्लेक्ट। इट इज गुड टू रिफ्लेक्ट, आई डोंट से नो, बट रियलिटी उस वक्त क्यों ये डिसीजन लिया था, ये समझना सीखना ज्यादा जरूरी है। हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, अभी मैंने रिसर्च एक पढ़ रहा था, रिसर्च नहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी है फर्नीचर की, और वो लोग आज की तारीख में से लिख रहे थे कि वी आर रिफ्लेक्टिंग कि हम लोग ने ऐसे क्यों किया, हम लोग ने ऐसे क्यों किया, हम लोग ने ऐसे क्यों किया। मैं ये बोल रहा था कि जब ये कंपनी के उस वक्त डिसीजन लिए जाते थे, उधर का कोई व्यक्ति तुम्हारे पास है और वो व्यक्ति यदि तुम्हारे साथ है, समझो वो नहीं है, एंड somebody else who work with him, यदि वो भी है तो उसको पूछो कि तुम उसके साथ थे ना, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एग्जांपल दो, क्यों ऐसा डिसीजन लिया, कैसे ऐसे डिसीजन लिया, क्या करके डिसीजन लिया, व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द डिसीजन, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर ड्राइविंग फॉर दैट डिसीजंस। गाइस ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपके एंसेस्टर्स वर एन एनसाइक्लोपीडिया of experiences, of mistakes, of things that they felt was right, of the things that they felt were wrong. They had a reason for it. तो उनके पास उन सभी चीज का वाई का आंसर है, जैसे आपके पास हर चीज का वाई का आंसर है, क्योंकि हम हर चीज को इवैल्यूएटिव स्पिरिट से देखते हैं। उनके पास भी आंसर था, लेकिन उस वक्त हम जाते नहीं है, हमारा मेंटल क्लॉक वहां पे रिवाइंड नहीं करते हैं, हमारा मेंटल क्लॉक उस जगह के एनवायरनमेंट में फिट नहीं करते हैं, एंड ये हमारी गलती है, उनकी नहीं है। My son is 19 and my father is 75. You know what my role is?
My role is to tell my son the things that my dad did, why he did, what he did. एक सिंपल सी चीज का एग्जांपल देना चाहता हूं गाइस, जस्ट पे अटेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग होएगा, मजा आएगा, शायद मजा आएगा, क्योंकि पर्सनल स्टोरी है इसलिए मैं बता रहा हूं. यू नो, मेरे डैड ने, आई थिंक अबाउट, मेरी एज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अबाउट 25-30 years back. So you know what, I would be about 15-16, maybe उसका पहले शायद उसी एज ग्रुप पे, ओके, उन्होंने कंप्यूटर बाय किया था. और ये कंप्यूटर वाज द साइज ऑफ द रूम, मतलब ऐसे 3 डब्बे लगा दिए थे, एक के ऊपर डेटा एंट्री होती थी, दूसरे पे प्रिंटिंग होता था, तीसरे पे इतनी बड़ी बड़ी फ्लॉपी थी, इतनी बड़ी फ्लॉपी. हाँ, ये देखो, तुम लोग तो इसको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी गाइस, इतनी बड़ी फ्लॉपी थी. फ्लॉपी यहां में मिलती भी नहीं थी भाई, से बाहर से लानी पड़ती थी. एंड जब उन्होंने सब किया, बैंक का कर्जा लिया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, बैंक का कर्जा लौटाने में बहुत मुश्किलें आई, उनको बहुत दिक्कतें आई. एक थॉट आता है रॉन्ग डिसीजन, नहीं, जाओ चेक करो, समझो क्या हुआ. ही इनफैक्ट मेरे डैड ने मेरी मॉम को भी उसके कोचिंग क्लास में भेजा था. उस वक्त कंप्यूटर का जो कोचिंग क्लास था, तो उस वक्त उसको भेजा था, बोले तो सीख ले, शायद हमारे यहाँ बिजनेस चालू हो सकता है. एंड इमेजिन, उनका वो चीज सही पड़ जाता, टुडे ही वुड बी ए बिग बिजनेस इन कंप्यूटर. यू नेवर नो. पर क्यों डिसीजन लिया था एंड कैसे डिसीजन लिया था, ये जानना बहुत जरूरी है. सिटिंग इन दोज शूज. सो आई ऑलवेज कीप टेलिंग माय एल्डर्स इन द फैमिली, गाइस प्लीज डू शेयर योर स्टोरीज. पितृपक्ष के 10 दिन में आई मेक श्योर दैट मेरे डैड को मैं बताता हूं कि यू टेल मी द इंसिडेंट्स दैट यू हैड विथ योर फादर, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ. Why a decision was taken, how a decision was taken, under what grounds a decision was taken, किस तरह से. Why? Because उनको उस वक्त का रियलिटी मालूम था. Learn, guys. So my first lesson is, there is always something called reflection, which is good, but it is better to get into the reality scenario. वो reality scenario में जाओगे, आपको पता चलेगा why and how a decision was taken, number 1. And number 2, my point to the people of my age who would be between the age group of 35 to 55, in case you're listening guys, मैं 2 हाथ जोड़ के आपको नम्र विनंती करता हूं कि please, you are the bridge. You are the bridge. सुना दे रहा है, आप ब्रिज हो between that generation and this generation. आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, समझो, सीखो क्या किया, कैसे किया, और उसको समझाओ कि बेटा ऐसा है. एंड माय यंगर जनरेशन, जो आज 15 साल से लेके 22 साल, 23 साल, 24 साल, आज का जो एकदम पावरफुल यूथ है, मेरे को उनको एक मैसेज देना है कि गाइस, rather than thinking कि let us see why my dad took a decision, go and ask, Dad, under what condition you took that decision, what made you took that decision, why you behaved like that. आप कभी गुस्सा हो गए तो सब क्यों हुए, आप ऐसे हो गए तो क्यों हुए, अपने मामा के नाम पे ऐसा जमीन क्यों कर दिया, अपने दादा के नाम पे ऐसा क्यों कर दिया, अपने छोटे चाचा के नाम पे ऐसा क्यों कर दिया, जबकि आपको मालूम है छोटे चाचा तो ऐसे हैं, वो बेकार हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, टिकना फलाना, सब कुछ बोलते हैं. आप क्यों किया, कैसे किया, ऐसे क्यों किया, नॉट ऐसे करके पता पप्पा क्यों किया. यू हैव नो राइट टू डू दैट. रादर 110% आपको ये प्रयत्न करना है कि आपको उनके साथ उनके एनवायरमेंट में झांकना है. चेक करो गाइस, इफ यू कैन चेक अंडर व्हाट एनवायरमेंट अवर फैमिली टुक ए डिसीजन, you will be absolutely so much happy कि just cannot believe. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. मेरी चाची है, मेरी मॉम है, ये लोग है ना, इनके घर में बहुत सामान रखते हैं, मतलब बड़े बड़े घर भी हैं तो सामान भी बहुत है. मैं हमेशा हंसता हूं, मैं आप कितना सामान रखते हो. चलो मेरा बॉम्बे के घर में देखो, मतलब छोटी छोटी चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आप लोग सामान रखते हो. एक दिन है ना, मेरी मॉम के, मतलब वो बोलते हैं ना, आता माजी सटकली साहिब, इधर तेरे को लगता है कि हम लोग इतना सामान क्यों रखते हैं. हाँ, बोले बराबर है ना, एक तो 2 चीजें हैं, तुम लोग जवान हो, तुम लोग लेके आ सकते हो, हम लोग कहां हर बार जाएंगे लेने के लिए. सेकंड,
कि जब ये लॉकडाउन वगैरह आया था तो हमको लगा था कि कभी खुलेगा पता नहीं, तो क्या क्या चीजें रखनी चाहिए कैसे मालूम थी, तो बहुत सारी चीजें लेके आ गए। एंड थर्ड पॉइंट, इंटरेस्टिंगली, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बोलते तेरे को पता है जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, तब हम लोग ऐसा मानते थे कि जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास चीजें थी, बर्तन थी, लोहे का थी, ये थी चीजें, मतलब थिंग्स अवेलेबल थी, वो लोग बार्टर में कुछ ला के बेच के दे सकते थे। तो थिंग्स हैड अ वैल्यू एंड मनी डिड नॉट हैव वैल्यू। हमने वो सीखा था, हमने वो किया, हमने वो सीखा था, हमने वो किया। एक 72-year-old लेडी जो मेरी मॉम है मेरे को एक्सप्लेन करती है, एंड आई एम सो ओके, करेक्ट, there is no point in reflecting why you're doing that, rather go back, sit into the environment। और फिर देखो क्या निकलता है guys, our family businesses all started like these। पहले बंदे जिसने अपने को बूस्टर डोज दिया कि जा तू बिंदास धंधा चालू कर, पहला आदमी जिसने अपने को क्रेडिट दिया, पहला आदमी जिसने बोला कि जा बिंदास तू ये माल इसको बेच, मैं खड़ा हूं, जिस पहला आदमी जिसने अपने को क्रेडिट पे माल दिया, आपके फादर लोग, आपके ग्रैंडफादर लोग, आपके चाचा, मामा, फूफा, मम, सिस्टर, जो भी इस बिजनेस में आए थे, ये सब भी लोग उस व्यक्ति को आज भी सैल्यूट करते हैं, उसके साथ जाके गले लगते हैं, उसके यहां जाके ऐसे बैठते हैं, और हम लोग बोलते हैं डैड अब बहुत बड़े हो गए हो। हाँ बेटा, लेकिन शुरुआत ये अंकल ने की थी, जब बंदे ने मेरे को ऐसा हाथ पकड़ा था, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं उसके सामने बड़ा नहीं हूं। And that is the difference between guys reflection and reality। जहां को रियलिटी में, नॉट ऑन रिफ्लेक्टिंग, एंड आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग क्लियर टू दैट। एनीवेज, सो इंडियन हैलोवीन अपना पितृपक्ष होता है, अपने श्राद्ध का पीरियड होता है, हमारे पास कुछ 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है, अलग अलग दिन पे, अलग अलग तिथि पे जो लोग का डेथ हुआ है उनको याद करते हैं उस दिन पे। मेरा छोटा सा नम्र विनंती, अनुरोध है, आप सबको प्रेयर है, एक रिक्वेस्ट है, इन सब नहीं समझ में आता ऑर्डर है, आई होप ये तो समझ में आता ही होएगा। नेक्स्ट 1 वीक में दिवाली है, हो सके तो डू वन थिंग, स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स एंड उनके साथ एक बार एक आधा पौने घंटे का सिर्फ बातचीत करो। वो परिस्थिति में उस टाइम पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते थे, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मजा आएगा। फैमिली डायनामिक्स का आपका डेप्थ देखना इतना अटेन हो जाएगा, यू विल बी योरसेल्फ थिंकिंग वाओ डैड, आई जस्ट कुडंट इमेजिन दैट वे। दैट्स रियलिटी गाइस। हमारे इंडिया से फॉरेन गए हुए लोगों को मैं जानता हूं, दैट्स द फर्स्ट जनरेशन इवेंट। आज वो लोग वहां पे लगभग 40-50 साल से हैं, 40-50 साल से हैं, लेकिन 40-50 साल से आज भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं। मैं उनको बोलता हूं बस यार, 50 साल से तुम्हारा ये नॉर्मल करेंसी डॉलर हो गया, तुम यहीं पे डॉलर में खर्च करते हो, सब कुछ करते हो, अब कहां इसको कन्वर्ट करने की तैयारी करते हो। एंड वो हंसते हंसते बोलते हैं समीश क्या करे यार, मतलब जब आए थे ना तो वो आधा डॉलर खर्च करने में इधर दुखता था कि यार ऐसा है, आदत सी पड़ गई। बोला आई अंडरस्टैंड एंड आई केप्ट क्वाइट अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड एंड आई केप्ट क्वाइट अबाउट इट। उनकी सेकंड जनरेशन वहीं पे पली बड़ी, सब कुछ हुआ, दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है डैड आप अननेसेसरी वरी करते हो, बट ये पीढ़ी को ऐसा नहीं है, देयर वरी इज करेक्ट, और उनका वरी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स रियलिटी वर्सेस रिफ्लेक्शन। सो रादर देन रिफ्लेक्टिंग डू दैट, ओके। मेरा सेकंड सबमिशन है, हो सके if possible document some of the lessons of the earlier generation and preserve it। I'm not joking guys, डॉक्यूमेंट का मीनिंग है लिखना जरूरी नहीं है, that's gone। वीडियो भी अच्छा है। इस जूम के जरिए मैंने मेरे पूरे फैमिली का इस चीज का एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। जो मेरे फूफा है, जो मेरे मामा है, जो मेरे काका है, इन सब का है, उन सब का मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू किया। एंड इट हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई वाज ब्लेस्ड। कब कैसे क्यों डिसीजन लिया, कैसे डिसीजन लिया, मतलब मेरे घर में से कौन पढ़ पाया, क्यों पढ़ पाया, कैसे कर पढ़ पाया, किस परिस्थिति में पढ़ पाया, आई लर्न दैट। एंड यू नो व्हाट, इंटरेस्टिंगली आई नॉट ओनली लर्न, पर मेरे बेटे को भी सिखाया कि बेटा देखो ये ऐसा है।
वो मेरे को बोलता है कि डैड उस टाइम पे दादा को ऐसा विजन था। बोला दादा नहीं, तेरे तो परदादा हो गए। बोला हाँ, परदादा को विजन था। करेक्ट। इंस्टीट्यूशनलाइज गाइस, दिस इज गोइंग टू गेट ओवर। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं। यस, जिस दिन इनकी आंखें बंद हो जाएगी, इट्स गोइंग टू गेट ओवर। फिर कुछ भी करो तब भी नहीं मिलेगा। तो बी ग्रीडी, हड़प लो, झड़प लो, खींच लो, क्योंकि ये सेकंड टाइम नहीं आने वाला है। एंड उन्होंने जो शायद गलतियां की हैं वही दोहराओगे तो वो लोग तुम पे हंसेंगे, बेवकूफ मेरे से नहीं सीखा, मैं भी तो यही गलती किया था। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि एक फैमिली में एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट ड्राइव हुआ था। तो मैं उस फैमिली के लोगों को मिला, मैं बोला कि आप अचानक इतना इन्वेस्टमेंट के पीछे क्यों पड़ गए। उसके ग्रैंडफादर वहां पे बैठे थे, उसने एक सुपर्ब आंसर दिया। बोलते बेटा आप नहीं जानते हमारी परिस्थिति ना, जब मैं बिजनेस किया था तो 2 बार डूब गया था, हमारा ज्वेलरी बल भी सब दाव पे लग गया था। मेरे बेटे ने भी बिजनेस किया, थोड़ा बहुत जमा, तो मैंने बोला बेटा पहले बचत करना शुरू करो। तो जब हमारी तीसरी पीढ़ी आई तो उनका प्राइमरी फोकस बचत पे ही था। एंड पैसे बचा बचा के आज हम खुद इतना बड़ा इन्वेस्टर हो गए, इतने बड़े कैपिटल के साथ बैठे हैं कि वी हैव नथिंग टू वरी। बस सिर्फ जान लो गाइस कि कोई बंदा डिसीजन क्यों ऐसे लेता है, कैसे लेता है, कौन सी परिस्थिति में लेता है। नाउ द बैड पार्ट, समझो वो दादा नहीं रहे तो क्या होता। उस लड़के को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे पापा इन्वेस्टमेंट ड्राइव के पीछे क्यों पागल पड़े हैं कि बचत करो बचत करो बचत करो, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। एंड वो किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहा हो तो उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं ब्रो हम लोग तो यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, गोवा में हम लोग विला ले रहे हैं, जाने देने, मेरा पप्पा तो मानेगा ही नहीं, बोलेगा पैसा बचा पैसा बचा। मेरा पप्पा खड़ूस है। अरे खड़ूस नहीं है, हिस्ट्री देखो मालूम पड़ेगा खड़ूस नहीं है। लेकिन हिस्ट्री हम सीखे ही नहीं, हमने हमारा हैलोवीन सेलिब्रेट ही नहीं किया। करो माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन हैलोवीन 15 दिन का फेस्टिवल है। यू आर सेलिब्रेटिंग कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे, जो तुम्हारे पहले के पूर्वजों थे, उनसे क्या क्या लेसन सीखा। माय डैड इज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली हु वर्कड विद हिज ग्रैंडफादर, एंड माय डैड्स ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी इन द बिजनेस ऑफ कमीशन फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो कि वो इंसिडेंट्स मेरे को बताते हैं, मैं बोलता हूं डैड आपके दादा, मेरे डैड को बोलता था आपके दादा मतलब आपके ग्रैंडफादर 5 पैसा के लिए ऐसा करते थे। मेरे को बोलते बेटा उस वक्त के 5 पैसा की कीमत तुम क्या जानो। बोले एक्सप्लेन करो। बोले तुम्हारे पास तो गूगल है, कैलकुलेट करो। एंड यू कैलकुलेट एंड यू आर लाइक शॉक्ड, ओके बॉस इज टॉकिंग अबाउट नॉट सम स्मॉल थिंग, इज टॉकिंग अबाउट बिग थिंग। एंड फिर मेरे को एक मस्त लाइन बोलते थे, बेटा ये 5 पैसे के साथ साथ मार्केट में इज्जत भी थी कि इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो डूबता नहीं था। तो उस तरह का अप्रोच भी याद रखना था। तो पैसे के साथ साथ गुडविल भी बनाई, ये भी किया। वैसे एंटायर स्टोरी, कौन सी घटना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा टाइम वो नहीं है यहाँ पे गाइस। मेरा टाइम आप लोग के साथ एक ही चीज है, प्लीज इंस्टीट्यूशनलाइज इट, डॉक्यूमेंट इट। डॉक्यूमेंट कुड बी वीडियो डॉक्यूमेंट, इट कुड बी ऑडियो डॉक्यूमेंट। एंड उस डॉक्यूमेंट को ऐसे प्रिजर्व करो कि तुम्हारी बात की पीढ़ी को वन फाइन डे उसको खाली ऐसे प्ले कर दो। गाइस लेट्स बी रिलैक्स्ड, आज कहीं वेकेशन पे गए, 2-4 दिन के लिए अलीबाग गए हैं, 2-4 दिन लोनावला गए हैं, या फिर कहीं पे भी गए हैं, तो एक 15-20 मिनट सुन लो आपके ग्रैंडफादर का पॉइंट ऑफ व्यू, आपके डैड का पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन एंजॉय बाकी के टाइम पे। मैं फुल टाइम इसके बोझ को पहनने की बात नहीं कर रहा हूं, पर आपके अर्लियर जनरेशन ने क्यों, कब, क्या, कैसे किया था, कौन सी परिस्थिति में क्या कैसे किया था, एंड क्यों ये डिसीजन लिया था, प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन दिस थ्रू नोइंग देयर एनवायरमेंट। उनके एनवायरमेंट को जान लोगे आपको इतना अच्छा लगेगा। मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम बहुत सारी चीजों में ना कमेंट कर देते हैं कि बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है, लेकिन क्या हम उसकी परिस्थिति को जानते हैं, उस परिस्थिति के अंदर घुसने की कोशिश भी करते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली एंड प्योरली योर ओन फैमिली एंड योर ओन फैमिली बिजनेस, नथिंग बियॉन्ड दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट। So please, my second submission is learn to document whatever lessons you get from your earlier generation. Learn to document. Okay, document गलत वर्ड हो जाता है तो learn to preserve. How you can preserve? Through audio या video methodology, but करना चाहिए। Yes.
आप लोग चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं मैंने किया ऐसे कि किस तरह से मैंने किया था. सो आई जस्ट डिड अ जूम, हमारे फैमिली का जूम किया था, उसमें रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया था. आई अलाउड फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स. उन लोग को मैं क्वेश्चन शूट करता था, वो लोग रिस्पॉन्ड करते थे, मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा था, मेरे बेटा भी सुन रहा था, हमारे घर में जितने भी यंग बच्चे हैं वो सुन रहे थे. मतलब खत्म होने के बाद, वाह डैड बहुत मजा आया, मस्त लग रहा था. मतलब ये कभी सोचा ही नहीं था. तो दैट्स गुड, गो एंड टॉक टू योर दादा कि व्हाई इज टॉकिंग लाइक दिस, व्हाई इज बिहेविंग लाइक दिस, एंड व्हाई ही इज एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक बी लाइक दिस. मतलब बहुत सिंपल सी चीज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इस पे अटेंशन. मेरे डैड मेरे बेटे को बोलते हैं कोई भी बुक लेने तो उसके पहले ऊपर डेट लिखनी चाहिए कि कौन सी डेट पे लिखना शुरू किया. दैट्स ओके. तो वो लिखता था, फिर धीरे धीरे वो नोटबुक से ई बुक पे चले गए. ई बुक पे डेट ऑटोमेटिक आ जाती है, तो हैबिट चली गई. वैसे ही लेटर में नीचे पहले अपन लिखते थे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली समीश दलाल. अब वो बहुत सारी चीजें प्री रिटन आती हैं, सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, तो सीधा मेरे को नाम ही लिखने का था. यू नो व्हाट, योर्स ट्रूली लिखते थे, थैंकिंग यू लिखते थे, तो भाव निकलता था. आज वो सब मैंने छोड़ दिया. ऐसे ही नीचे हाउ आर यू डी 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 खड़ा देखे सेंड, क्यों? क्योंकि बाकी का तो सिग्नेचर में ऑलरेडी पहले से प्री लिखा हुआ है ना. गाइस देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ टच एंड इमोशन. पर ये मैंने नहीं बताया मेरे बेटे को, ये मेरे डैड ने उसको बताया. एंड दैट वाज हैपनिंग. अब वो कहीं बाहर पढ़ता है, जब वो मैसेज करता है तो पहली लाइन लिखता है जय श्री कृष्ण. एंड दैट्स सो नाइस टू मी. मैं बोला कि वाओ, आई मीन आई कैन सी द चेंज. आई कैन सी द चेंज. क्यों? क्योंकि पहले विश से शुरू करना चाहिए, बाद में कंटिन्यू करना चाहिए. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वी आर चैंपियंस, ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है. आई एम वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई बिलीव आई वुड लव टू बी इन वर्क इन प्रोग्रेस. आई बिलीव आई वुड लव टू बी इन वर्क इन प्रोग्रेस. क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं वर्क इन प्रोग्रेस होएगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी मैं फिनिश्ड गुड्स बन जाऊंगा. लेकिन यदि मैं रॉ मटेरियल स्टेज पे रहूंगा तो इसमें जाऊंगा कब? गाइस आ जाओ, Ajao, be a part of work in progress at your GFMB program. We love to talk about all these things and more. The reason being, family dynamics is an institution. It's an institution. वो वन साइड स्टोरी नहीं है, वो संस्था है. संस्था में खाली ज्ञान नहीं मिलता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है. एंड दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग. That's the best way of learning. All right. And then coming to my third and final point, guys. थर्ड एंड फाइनल पॉइंट. ये एक मेरा इंटरेस्टिंग चीज, मैं बहुत बार कभी कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बोल चुका हूं, लेकिन आज मैं बोलने जा रहा हूं. उसका एक अलग कारण है. ये जो हम हैलोवीन की बात कर रहे थे, स्पेशली इंडियन हैलोवीन की बात करते थे, ये बहुत जरूरी है. यू नो फ्रेंड्स, बहुत बार मैं ये सोचता हूं कि क्या मेरे में बहुत ताकत है. कि सोचता हूं कि मेरे में ताकत नहीं है. देन आई रियलाइज कि मेरे में कोई ताकत नहीं है. हम सब में कोई ताकत नहीं है. हम सब में ताकत कहीं से आती है. कहां से आती है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ओन पावर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बोरोड पावर. Something called own power and something called borrowed power. तो जैसे हर कंपनी में कभी कभार हम पैसा बोरो करते हैं और लेंडर का नाम लिखते हैं कि भाई इसने मेरे को इतना बोरो करने का चांस दिया है, इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं. यू नो गाइस, ये एंसेस्ट्रल स्टोरीज है ना, ऐसी है. मतलब समीश का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन समीश दलाल का बहुत मूल्य है. वैसे ही आप सब अपने आप को देखो, आपके नाम का कोई मूल्य नहीं, लेकिन आपके साथ आपके एंसेस्टर का नाम जुड़ा, आपकी सरनेम जुड़ी, उसके में बहुत पावर है. एंड दैट इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर गाइस. सो व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन द इंडियन हैलोवीन, ऑलवेज गो डाउन टू योर एंसेस्टर्स. दिवाली आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है. जाके उन बड़ों का पैर छुओ और उनको जाके बोलो कि आप मेरे गंगोत्री हैं. गंगोत्री मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गंगा जिसको बोलते हैं. आप मेरे गंगोत्री हैं, आप मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है. आपके में से ताकत मेरे में आती है और आगे बढ़ती जाएगी. एंड वो अपने फादर को बोलेंगे, ग्रैंड फादर को बोलेंगे, यदि इफ दे आर राइट. यस गाइस,
मैं 4 फेजेस में भी बोलता हूं. I don't have my power. My first power comes from my ancestor powers. My second power comes from my parents. Third power comes from my employees, customers and suppliers. And चौथा power मेरा खुद का है. Sources of power a person possesses. कोई बंदा जाता है एक अच्छी होटल में, अपने आप को खड़ा करता है और बोलता है कि मेरा रूम है और मेरे रूम पे 20% डिस्काउंट ऑलरेडी प्री फिक्स्ड है. ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुमने जिस क्रेडिबिलिटी से बुकिंग कराई है वो बोल रही है. वो क्रेडिबिलिटी कौन सी है? तुम्हारे फैमिली बिजनेस की है, तुम्हारे फैमिली की है. एंड दैट इज द वैल्यूएबल थिंग. गाइस, आर वी अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दिस? सो मैं हमेशा बोलता हूं, पहला 75% पावर बोरोड पावर है. बोरोड पावर है, आपका नहीं है. आपका तो सिर्फ 25% है, 1/4. बाकी का 75% बोरोड पावर है. उनके कारण आप हैं, उनके कारण आप हैं. कल को हम लोग एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि आपके कोई स्टूडेंट ने मदद कर दी है. कल को आपका अच्छा कुछ चीज हो जाता है क्योंकि आपको किसी और ने मदद कर दी. गाइस, ये आपकी ताकत है. कोई बंदा बोलता है मैंने ऐसा किया, बुलशिट. तूने कुछ नहीं किया है. तू इन सब के तंबू के कारण खड़ा है. ये सब के बंबू के ऊपर तेरा आधार है. ये तेरे बेस है जिसके ऊपर तू खड़ा है. एंड कल को तू भी खुद किसी का बेस बनेगा, तब तेरे ऊपर कोई और खड़ा होने वाला है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, रादर दैट्स द स्पिरिट. आज मैं दब जाऊं लेकिन मेरे ऊपर मेरा बेटा खड़ा होना चाहिए. वो दब जाएगा क्योंकि उसके ऊपर उसका बेटा या बेटी खड़ी होनी चाहिए. वो दब जाएगा क्योंकि आगे जाएगा. दैट्स द वे अ फैमिली ग्रोज. एंड इन सबको एक दूसरे का ताकत मिलते जाता है, ताकत मिलते जाता है, ताकत मिलते जाता है. वो जो शक्ति है इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ पावर. On this wonderful Indian Halloween day, या वो पूरा 15 दिन का पितृपक्ष का पीरियड, I would suggest you guys to reflect on it and study it. कि आपको किससे पावर आया है, कैसे पावर आया है, वो पावर का कितना वजूद है, कितनी एनर्जी है उस पावर में, उसका रेलेवेंस क्या है आपकी लाइफ में. एंड इफ यू कैन रिलेट एंड ब्रिंग अबाउट दैट पावर इन योर ओन लाइफ एंड देन बी व्हाट यू कैन से ग्रेटिट्यूडनल टुवर्ड्स इट, nothing better than that. I do tell, I am telling, and I will keep telling. I am what I am is not because of what I am. I'm sure दीपल मैडम अभी है ना, स्क्रीन तो बंद है उनका, लेकिन वो मेरे साथ ये लाइन बोल रही होगी क्योंकि ये लाइन तो वो भी 50 बार सुन चुकी है. I am what I am is not because of what I am. I am what I am is because of you guys. हाँ जी, मेरे स्टूडेंट ने मुझे बनाया, मेरे को जो लोग सुनते हैं उन्होंने मुझे बनाया, मेरे परिवार ने मुझे बनाया. मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं. एंड जब मैं कुछ नहीं हूं, ये बिलीफ पक्की हो जाती है ना, तो आप अचानक जो सोर्स आपके सामने है उन सब के लिए रेवर्ड हो जाते हैं, उन सबको रिस्पेक्ट से देखते हैं. एंड सडनली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट ओके बॉस, आज का ये 15 दिन इज सो वंडरफुल दैट यू आर व्हाट यू आर इज बिकॉज ऑफ दैट. एक साल पहले एक जन की मदर का डेथ हो गया. उसकी वो एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी. रो रहा था, मैं उसके साथ था. मैंने उसको बोला या you have a right to cry, you should cry also. And then I asked him a question, why are you crying also? Well, I'm missing my mom. But I agree, 100% I agree. लेकिन मेरे को एक और बात बता, तेरी मॉम ने ऐसा सिग्निफिकेंट क्या काम किया था? अरे क्या बात करते हो समीश भाई, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं. तो बताओ तो सही. And he started, क्या कहते हैं, recalling all the activities, deeds his mother did, etc. You know guys, एक आधे पौने घंटे में रोने के साथ साथ वो बंदे की आंख में एक स्पार्कल आ गया था, एक स्पार्कल आ गया था, एक लाइट आ गई थी. और मेरे को ऐसा फील करा रहा था कि समीश भाई आपको नहीं लग रहा कि द मॉम स्पीकिंग. मैं उसको बोल रहा ब्रो, मैं इसलिए तो बैठा था यहाँ पे कि आई वॉज हैप्पी लर्निंग लेसन्स फ्रॉम यू because that were not your lessons, that was your mom's lesson. And वो इतना खुश हो गया, बोलते ये मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा. वो तेरी गलती नहीं है यार, तेरी गलती नहीं है, ये हर किसी की गलती है. क्योंकि हम लोग इस चीज को समझते नहीं है. वी आर एक्चुअली स्टूपिड पीपल. बुरा नहीं लगाना, जरा भी बुरा नहीं लगाना. बुरा लगा होगा तो आपकी गलती है. हम लोग स्टूपिड लोग हैं. पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है ना,
उसकी कीमत नहीं करते। जो रिसोर्स बाहर होता है ना उसकी बहुत कीमत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए शायद पे करना पड़ता है। पर जो सबसे बड़ा रिसोर्स उसको पे नहीं करना पड़ता, फ्री अवेलेबल है, इसलिए हम लोग उसको कीमत नहीं करते। चलता है, होता है ही नहीं, बाद में देख लिया जाएगा, वो तो महंगा है, वो बरोबर होएगा। वो महंगा है क्योंकि उसके ऊपर दाम लगा है, इट हैज अ प्राइस। अरे पागल लोग, ये जो घर में है वो प्राइसलेस है, प्राइसलेस, उसकी तो कोई मूल्यांकन ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। अब जो चीज की कीमत ही नहीं है तो उस चीज का फिर आप मूल्यांकन भी क्या करोगे? ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। एंड पूरे साल में इफ आई लुक एट माय ओन शेड्यूल, मेनी टाइम्स जैसे जाते हैं, पूरा वीक निकल जाता है, मैं मेरे डैड मॉम से बात नहीं कर पाता हूं। या आई एम सीरियस अबाउट इट, ऐसा जेन्युइनली होता है। लेकिन मेरे को दुख नहीं होता है, क्योंकि आई हैव गॉट ए वंडरफुल पार्टनर इन माय लाइफ। माय वाइफ, शी डज मेक श्योर कि वो 24 घंटे में एक बार मिनिमम, 12 घंटे में एक बार मिनिमम मेरे मॉम डैड से बात कर लेती हैं। एंड ऑब्वियसली दे आर आल्सो मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर, बट एवरीथिंग इज राइट, ऐसा मेक श्योर कर लेते हैं। एंड फिर उसमें से कुछ बातें निकल आती हैं एंड देन वी कीप डूइंग दैट। कल रात को भी सैटरडे इवनिंग था, मैं कहीं बाहर था, लेकिन कल रात को भी हमारा फैमिली जूम हुआ एंड वो लोग फिर मिले। अभी आप लोग बोल रहे हैं मेरा एग्जाम्पल, मैं इसलिए बता रहा हूं गाइस क्योंकि मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हम करते हैं क्यों? क्योंकि हम इस चीज को बिलीव करते हैं। We at GFMB are firm believers in the Indian family system, in the Indian family value system. मेरे सामने एक लड़की बैठी है, उस लड़की को पूछो कि घर में एक वीक पहले 2 जन बीमार थे, तो मदर को उधर जाना पड़ा, भाई टूर पे था, हस्बैंड कहीं और टूर पे था, तो वो और उसकी भाभी और 3 बच्चे, पर शील मेक श्योर कि सबको हैंडल करके ऑफिस का भी काम करे, ये भी काम करे, टाइम पास नहीं कर रही है, वो लड़की मैनेज कर रही है। राइट दीपल मैडम? आई नो यू नो दिस इज योर स्टोरी, बट ये हकीकत है गाइस। अब सवाल ये आता है कि हम सब कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग नहीं करते, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि आप करते हो, करते रहिएगा। एंड सेकेंडली, इंडियन हैलोवीन को सेलिब्रेट करो इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लर्निंग, in the true spirit of learning, in the true spirit of assimilating brilliant ideas, in the true spirit of celebrating it. मैं सही कह रहा हूं, with a lot of enjoyment, with a lot of enjoyment. मतलब I still remember, मतलब मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जो पुष्टि पितृपक्ष में जब उनका डे आता है, तो हम लोग सबको होमवर्क देते हैं, बकायदा होमवर्क, कि आपका उनके साथ जो टाइम गया है, द टाइम दैट यू स्पेंड विथ हिम, टेल वन लेसन आउट ऑफ इट, यू विल बी सरप्राइज्ड गाइस। ऐसा हमने पिछले 5-7 साल में स्टार्ट किया है, हर बार फिर भी कोई नया चीज आता है, हर बार नया कोई चीज आता है। इन द फैक्ट दैट व्हाई इन आवर फैमिली वी हैड अरेंज्ड मैरिजेस, उसका भी लॉजिक किसी के पास से निकला। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ थे। ही इज द लास्ट एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ फैमिली। He's like I think 89-90। तो बोलते तेरे परदादा है ने, तेरे पापा का दादा, हाँ, तो उसने ऐसा ऐसा निर्णय लिया था, हम सबको मालूम है, बड़ा डांटते थे ऐसा कर, but we used to talk like very funny way। हम लोग उसको वीडियो रिकॉर्ड करके पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इनका आवाज भी पकड़ लो। एक 2 months पहले I came across a video of my grandfather speaking। एक इतना पार्ट है, पूरी वीडियो प्ले में से इतना पार्ट है। मैंने मेरे डैड को बोला, डैड इसका क्या करें? बोले बेटा ये गलती से भी डिलीट नहीं होना चाहिए। एंड आई कुड सी दैट द टीयरफुल स्पार्कल इन हिज आईज एंड आई वाज सो हैप्पी विद इट। lifelong resources। So guys, your ancestors are there with you in true spirit of it। they have been teachers, they will be teachers। और उनके lessons आज शायद आपको रिलेट नहीं हो पाए। मैंने बोला ना कि आज मेरा बेटा वो ई बुक लिखता है, तो उसको डेट लिखने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक डेट आ जाती है। लेकिन फीड तो किया था ना कि डेट लिखना है, इट वॉज टू बी फेड राइट। फिर अभी ऑटोमेटिक हो गया तो नई चीज आएगी। परिस्थिति के हिसाब से मैं ये नहीं करूंगा कॉपी पेस्ट, डोंट स्टिल राइट द डेट। आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट डू दैट, कॉपी पेस्ट मत करो, और उनका रीजन जान लो। आज भी मेरे चाचा व्हाट्सएप भेजते हैं तो नीचे अपना नाम लिखते हैं,
मैं उनको एक दो बार बोल चुका हूं, बाद में मैं नहीं बोलता हूं, दैट्स फाइन यार। इज राइटिंग बिकॉज ईयर्स से उनको नाम लिखने की आदत है, क्योंकि कोई भी कागज पत्र व्यवहार कुछ भी लिखते थे तो ऊपर लिखते थे डियर ये, ऐसे ऐसा पूरा मैसेज लिखते थे और नीचे थैंकिंग यू योर्स जयेश दलाल ऐसा लिखते थे, तो लिखते तो लिखने दो ने, क्या फर्क पड़ता है? I mean, why say no to it when something is not wrong? It's not wrong. You understand their belief system and you're so happy about it. And मैं आज इतना खुश हो जाता हूं कि एटलीस्ट लिखते तो हैं, एटलीस्ट लिखते तो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं हम लोग तो व्हाट्सएप है ही नहीं। अरे क्या नहीं है भाई, आप आओ, आप हिंदी गुजराती गुजराती इंग्लिश मिक्स लिखोगे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को बताओ? इज राइटिंग इज फीलिंग्स, यू शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड देन pass it on. Anyways, guys, so the idea behind today was a very different thing, and that is what are we learning from the Indian Halloween for family business. Family business, guys, is not a family business of the business people who are still surviving only. I mean, sorry, family members who are surviving. Galat hai. A family business is a family business. It includes everybody, the ones who are there, the ones who are, and the ones who are going to come. And in sub के पास से कुछ लेने का है, जो चले गए हैं उनके साथ कोई बंदा काम करता था, उससे लेसन निकालो। अभी के टाइम पे अप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, यू स्टिल गुड विथ इट एंड देन पास इट ऑन फर्दर। इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोइंग टू बी योर फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर। बहुत बार ऐसा होगा कि उस टाइम का कोई लॉजिक आपको आज काम आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी टोटली ज़ैप्ड एंड सरप्राइज्ड कि हाउ कम दैट टाइम का लॉजिक आज काम आ गया, बट हो सकता है। Don't disregard that, don't discount that. All right, with those words, guys, I wish you all a very, very good time, a happy Diwali and a happy new year, and stay tuned for more such Sunday sessions. We're not meeting on 7th, but we'll definitely meet on 14th, and God bless you guys. I'm absolutely happy to see a wonderful participation, and have a great time with your family. Celebrate, enjoy, and be good, and be learning from the source, the ancestors. Indian Halloween ko celebrate karte jaiye. With those words, guys, wish you all the best. Have a great time. Thank you very much. Okay, I'm so happy. I've got some. Anybody has any question, or please free to type it out in case anybody has any question, please. Absolutely. Anybody has any question, please feel free to type it out. In case anybody has any point to make, please do that, or else आपको कुछ specific requirement है, you can type it out, your phone number. I or Deepa ma'am can reach you out whenever it is possible, for whatever purposes it's possible. Okay. Parth has a good question. Parth says, how to avoid fear while asking anything. Parth, डरो तब जब कुछ गलत करने जा रहे हो। डरो तब जब कुछ गलत करने जा रहे हो। यदि गलत करने जा नहीं रहे हो ना, तो डरो मत। पर डरो मत का मतलब डोंट टेक इट एज एरोगेंस। फॉर एग्जाम्पल, if I am going to ask something from my father and it is something that normally I should ask, तो मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसके कारण एरोगेंस भी नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि डैड, आपने उस वक्त ये कंप्यूटर बिजनेस का डिसीजन क्यों लिया था? लुक एट माय एक्सप्रेशन, छप गया। मेरे डैड बोलते हैं, बेटा इस तरह से तो आज तक मेरे पापा ने तो मुझे नहीं पूछा, ऐसा तो पूछ रहा है। पापा, अपना वो कंप्यूटर वाला मस्त चलता है, पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। पापा, पर उस वक्त अपने डिसीजन क्यों लिया था? कुछ तो होगा ना आपके दिमाग में, क्या था? देख, उस वक्त क्या हुआ था, लेसन स्टार्ट हो गया। पार्थ, आज 110% आप पप्पा आंसर बोल के जाएगा, क्योंकि तुमने उसके साथ बात की है, तुमने उसके चैलेंज नहीं किया है। बी अ कन्वर्सेशनलिस्ट, be a conversationalist, not a person who's confronting somebody for knowing something. वैसे तुम उसको जानने के लिए कर रहे हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? बिंदास पूछो कि ऐसा
क्यों हुआ, कैसे हुआ। पर मैंने बोला ऐसे, ऐसा तुम अरेस्ट करके करोगे तो फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब मैं आपको एक मेरी हकीकत मिस्टेक बताता हूं। उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे, साथ में पैरेलली मेरी वाइफ को भी भेजने वाले थे, गलती से उन्होंने दूसरे नाम को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि सेम टू सेम नाम था। जैसे ही वो दूसरे नाम पे चला गया, मैंने उनको बोला, डैड आपको मालूम है आपने कैसी गलती कर दी। मेरे डैड एट द एज ऑफ 74 मेरे को ऐसा बोलते हैं, बेटा आई एम रियली सॉरी। मैं बोला सॉरी नहीं, मेरे से थोड़ा जोर से बोला गया, आई रिग्रेट, आई रिग्रेट। एंड ये एक रियलिटी है गाइस, मेरे से गलती हो गई, आई रिग्रेट। पर फिर मैंने उनको बताया कि बता आपको इसमें गलती क्या है। ये तो ठीक है, ये जानी पहचाना ही व्यक्ति था, कोई स्ट्रेंज व्यक्ति को मैसेज चला जाता तो लोचा हो जाता कि नहीं। तुम रहने दो ना, आप मेरे को खाली भेज दो या खाली श्वेता को भेज दो, दोनों में से एक को भेज दो, श्वेता इज माय वाइफ, उसको भेज दो, दैट्स ओके। हम दोनों के पास, एक में पास आ गया, रिकॉर्ड आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो हमारा काम है, आप चिंता मत करो। दैट्स द आइडिया पार्ट, ऑलराइट। Jasdeep Singh has a question, how to share ask when other one having selfish concerns. हाँ, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट जसदीप। तुम क्लीन हो, अपने आप को पहले पूछो, तुम क्लीन हो, आंसर यस है तो पूछो, जवाब देना नहीं देना वो सामने वाले का है, जवाब देना नहीं देना सामने वाले का है। मान लो किसी एक ने जवाब नहीं दिया, दो अंकल हैं, एक ने जवाब नहीं दिया, एक ने दिया, दैट्स ओके। दोनों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। कोई और व्यक्ति तुम्हारे घर में है जिनको उसमें से अपन कैप्चर करा के बाहर ले आ सकते लेसन के लिए, एक्सप्लोर करो। क्योंकि ये जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है, 100% पॉसिबल है। पीपल कुड बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप अराउंड, इसलिए ऐसा नहीं है कि 100% आपको राइट मिलेगा। हो सकता है कि देयर आर सम पीपल जो आपको सही आंसर ना भी दे, या आंसर तो क्या आपको साथ सही चीज बताए ही नहीं, या फिर बताए नहीं, आंसर भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं देने को जवाब, मैं क्यों दूं जवाब तेरे को। शांति, कोई बात नहीं, स्टेप आउट ऑफ इट। क्योंकि अभी क्या है, इट्स गोइंग टू लीड टू अ स्पार्क, ठीक है, नहीं आंसर देना है, कोई बात नहीं। और कोई उस टाइम का व्यक्ति मिल गया तो उसके साथ आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो दैट क्वेश्चन गोइंग टू साइड बर्नर। कभी फ्यूचर में चांस मिला और ये थोड़ा हिलेंगे तो जवाब निकल आएगा, दैट्स ओके। बट उसके कारण आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ टू गेट मोर पुशी अबाउट इट। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ओके, दिस गेट्स रिकॉर्डेड, आई कैन नेम अ लॉट ऑफ पीपल, बट ये मैं हकीकत बता रहा हूं कि आई नो सम पीपल जो अपने बच्चों के साथ इस तरह से बात की, बट दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, कांट डू, कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है, रहने दो, ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे। नहीं आंसर करते कोई बात नहीं, पूछने का हमारा काम है, प्रेम से पूछो, यूं ट्विस्ट टुटा के पूछो, यूं करके पूछो, यूं करके पूछो, फिर भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो बंदा समझ गया है और उसका कंसर्न है कि मेरे को नहीं, ठीक है, दैट्स ओके, रिलैक्स, डोंट वरी, बिकॉज हर चीज का आपको एग्जैक्ट आंसर मिले जरूरी नहीं, क्योंकि कोई फैमिली में ऐसा भी मिल गया, but that's okay, I have seen those things, so don't worry about it, okay? All right, thank you very much Steve, and I hope I sorted your question, and how to fill the generation gap in understanding, sir. Satyanarayan ji, actually honestly speaking, hum log at GFMB program we don't believe कि there are generation gaps, we believe that it is called कम्युनिकेशन गैप। क्यों? क्योंकि जनरेशन गैप को हम पता है कैसे लेबल करते हैं, तेरी और मेरी जनरेशन को हम दोनों की परिस्थिति समझ में नहीं आती है, करेक्ट है ना? मतलब मेरे डैड पेट्रोल पुराते थे, पेट्रोल डलाते थे अपने व्हीकल में, वो सिंगल डिजिट में था, अभी आपको मालूम है व्हाट इज द कंडीशन, 3 डिजिट के भी ऊपर निकलने को आ गया है, मतलब अब देख ले 100+ चला गया है। एंड फिर भी ये बोलता है बेटा कि घूमे, और मेरे डैड बोलते कितना महंगा हो गया है, हम लोग कितने में करते थे, तुम लोग समझते नहीं, समझते ही नहीं, नॉर्मल लाइन, एंड आई एम, दैट्स फाइन। फिर मेरा काम अलग हो जाता है, उनको बोलता हूँ डैड ये राइट है, आप भी राइट है, अरे क्या बेटा राइट है, ये कितना पेट्रोल उड़ाता है, डैड रिलैक्स, अब ये राइट और आप राइट क्यों है, आपके टाइम पे घूमने का ही जगह कम था, आपके टाइम पे ये लेवल था, इनकम लेवल्स ये थे, इसके टाइम पे ये हो गया, ये हो गया, टॉक, बात तो करो, मेरे को अच्छा लगेगा, घर में झूला है, झूले पे शांति से बैठो और एक पीढ़ी और लास्ट वाली पीढ़ी दोनों बैठ के बातें करो। एंड सत्यनारायण जी, आई कैन शो यू सम ऑफ माय फोटोज इन विच माय डैड एंड माय सन बोथ आर टॉकिंग, एंड इट्स सो नाइस टू सी दैट, बराबर है,
ये अपना पॉइंट रखता है, ये अपना पॉइंट रखता है, ये बोलते हैं कि तू मेरे को मैसेज करता है तो तू ऐसे क्यों नहीं लिखता है, तो और तू कैसे करता है, इट्स गुड, एंजॉय दैट। बट इन दिस नो जनरेशन गैप, उन बात करवाओ, कम्युनिकेशन करवाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट्स द वे वी कैन टॉक। जसदीप सिंह, yes, then also it's good to share inputs. Yes, do keep sharing. शेयर करने से जसदीप सिंह कुछ भी कम नहीं होएगा, कुछ भी कम नहीं होएगा, कुछ भी कम नहीं होएगा। हम लोग ये जूम सेशन कर रहे हैं। एक बार दीपल मैडम ने मेरे को बोला था, वी हैड वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स, मेरे को बोलते हैं कि सर, मैं बोला कोई टेंशन नहीं, हम लोग अपनी चीज बताते जाएंगे, एक मिशन लेके चल रहे हैं, एंड उस मिशन को नाम सिंपल है, मिशन का नाम है फैमिली मैनेज बिजनेस को सब लोगों तक पहुंचाओ उसके राइट स्पिरिट में। तो उसमें कभी ज्यादा लोग कम लोग ऐसा हो सकता है, एंड एक टाइम पे इतने ज्यादा थे तो मैंने बोला तो आपने कुछ बोला नहीं, तो हंसने लगी, बोले ज्यादा थे तो क्या बोलने का, बोला ऐसा नहीं होता है। आप हर परिस्थिति में प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, अपने इनपुट्स देते रहो, कहीं ना कहीं कामयाबी 110% आपके पास आनी ही है। बी परसिस्टेंट ऑन इट, इट विल बी गुड। तो गुड टू शेयर इनपुट्स, कीप शेयरिंग। कोई शायद बंदा उकड़ जाए तो ठीक है, ना बोले बोले बोला शांति, ओके, विल स्टेप आउट ऑफ इट, नो वरीज, दैट्स ओके, ऑलराइट। And Parth, how to make your dad understand and convince if you want to invest in digital marketing or investment of a business? Parth, यहाँ पे ना क्वेश्चन फैमिली बिजनेस का है, तो मैं तुमको ऑफ द क्लफ आंसर नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो उनको कन्विंस करने के पहले मैं तेरे को और उनको दोनों का एनवायरमेंट समझूंगा, बाद में मैं कमेंट कर सकता हूं। आई कैन से कि उनको ऐसे कन्विंस करो, वैसे कन्विंस करो। मैं हर फादर की परिस्थिति अलग होती है बेटा, हर फादर की परिस्थिति अलग होती है। किसी की परिस्थिति ऐसी थी, किसी की परिस्थिति ऐसी, किसी का कोई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का फाइनेंशियल प्रायोरिटी होगा, किसी का नहीं होगा, मतलब यू कांट। इसलिए ऐसा सोचो भी मत कि उनको कन्विंस करने का है, रादर पहले झांको, उनके अंदर जाओ, निकालो उनका रेजिस्टेंस का कारण, उनका स्टॉप होने का कारण, उनका विथहेल्ड होने का कारण, एंड फिर जाओ, इजी पड़ेगा। बट फर्स्ट नो हिज साइड ऑफ द स्टोरी, his side of the story 110%, with before commenting know his side of the story, उसकी परिस्थिति क्या है ये जानने की कोशिश जरूर करो, and that's going to be a very very important thing. All right, so I suppose Deepal madam, are you there? There are no more questions coming in, and most of them are saying goodbye and have a good time. So I wish everybody on your behalf and on the behalf of SPGen School of Global Management and the GFMB program, please, at any point of time you feel like, reach out to us. The program is ready for you at any point of time, and we will look forward to see more and more people on our regular Sunday sessions. God bless you guys. Have a great time. Thank you very much, and happy Diwali and happy New Year to everyone. Thank you. God bless you.